जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees Hare Krishna। All glories to assembled devotees Hare Krishna। All glories to assembled devotees Hare Krishna। All glories to Shri Guru and Shri Gauranga। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी।
हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद, उसमें से चौथा अध्याय में से पहला श्लोक, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। सुत उवाच वया सखेर इति वचस् तत्त्वनिश्चयमात्मनः उभद्धार्या मतिं कृष्णे औत्तरे सतिं व्याधात्। Translation: Sutta Goswami said, Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Sukadeva Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. Purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The word Satim is very significant. This means existing and chaste. And both imports are perfectly applicable in the case of Maharaj Parikshit. The whole Vedic adventure is to draw one's attention entirely unto Lord Krishna's, unto lotus feet of Lord Krishna, without any diversion, as instructed in the Bhagavad Gita 15.15. Fortunately, Maharaj Parikshit had already been attracted to the Lord from the very beginning of his body, in the womb of his mother. In the womb of his mother, he was struck by the Brahmastra atomic bomb released by Ashwatthama. But by the grace of the Lord, he was saved from being burnt by the fiery weapon. And since then the king continuously concentrated his mind upon Lord Krishna, which made him perfectly chaste in devotional service. So by the natural sequence, he was chaste devotee of the Lord. And when he further heard from Srila Sukadeva Goswami that one should worship the Lord only and no one else, even though full of all desires or desireless, his natural affection for Krishna was strengthened. We have already discussed these topics. To become a pure devotee of Lord Krishna, two things are very much essential. Namely, having a chance to be born in the family of a devotee and having the blessings of a bona fide spiritual master. By the grace of Lord Krishna, Parikshit Maharaj had both the opportunities. He was born in a family of such devotees as the Pandavas. And just to continue the dynasty of the Pandavas and show them special favor, Lord specifically saved Maharaj Parikshit, who later on by the arrangement of the Lord was cursed by the boy of a Brahmana and was able to get the association of such a spiritual master as Sukadeva Goswami. In Chaitanya Charitamrita it is said that the fortunate person by the mercy of the spiritual master and Lord Krishna achieves a path of devotional service. This was perfectly applicable in the case of Maharaj Parikshit. By way of being born in a family of devotees, he automatically came in touch with Krishna, and after being so contacted, he constantly remembered him. Consequently, Lord Krishna gave the king further a chance for development in devotional service by introducing him to Sukadeva Goswami, a stalwart devotee of the Lord with perfect knowledge in self-realization. And by hearing from a bona fide spiritual master, he was perfectly able to concentrate his chaste mind further upon Lord Krishna as a matter of course. Om Ajnantimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाहों विष्णुभराय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से इस मंगलवार कार्यक्रम में हृदयपूर्वक आमंत्रित करता हूँ और सभी भक्तों के आशीर्वाद से हम ये जो श्रवण कीर्तन का बताते कि आयोजन किए हैं, ये भगवान की असीम कृपा है। जो उनकी कृपा से मिलता है बहुत दुर्लभ रहता है। जैसे मैं यहाँ पे आगमन किया, सबसे सौंदर्य दृष्टि। पहला बात तो ये कार्तिक महीना ही इतना बताते कि द किंग ऑफ ऑल द फेस्टिवल, बताते कि महीने में इतने सारे। हरे कृष्णा। इतना सारा, बहुत सारा, जैसे वैदिक संस्कार के हिसाब से बहुत सारे बताते हैं कि ऑस्पिशियस मंथ्स आते हैं, बहुत सारे आगमन भक्ति के लिए आगमन करने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते। पर सबसे उत्तम वैष्णव प्रिया के लिए, सबसे वैष्णव जो लोग राह देखते हैं वो है ये कार्तिक महीना। हालांकि भारत में सबको पता है यही महीने में दिवाली को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है। दिवाली सब लोग राह देखते, कभी वो दिवाली का महीना। ऑफ कोर्स क्रैकर्स इज ऑल्सो वन थिंग, बट सबसे महत्वपूर्ण है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भगवान ये किसकी याद में होता है? किसकी याद में हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते? कोई बता सकते? हाँ, श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या के लिए वापस आ रहे हैं। और हमारा ये सौभाग्य है
कि आपको ये अवसर मिल रहा है कि हर मंगलवार में श्री राम कथा की आपको सुनाई मिलता है। एवरी ऑल्टरनेट ट्यूसडे भगवान श्री राम जयंती। तो ये सोच लीजिए, वो भी ये कार्तिक महीने में आता है। तो मैं जैसे मैं यहाँ पे आया तो मैंने ये सुंदर दृष्टि देखा। इससे बड़ा और दृष्टि क्या हो सकता है? दामोदर, यशोदा गोपाल को दामोदर बांधने का जो ये है, एक्चुअली लोग सोचते हैं कि उसमें बड़ी बात क्या है। व्हाट इज द बिग थिंग? हर माता तो अपने बच्चे को तो पनिश करते हैं, वो तो ये बताते हैं इट इज़ नेचुरल, स्वाभाविक है। उसमें आप लोग उसको इतना बड़ा चीज़ क्या बनाया है? यहाँ भगवान जब छोटे से छोटा चीज़ भी बनाते, वो बहुत उसको बताते कि आचार्य लोग इसको 1000 गुण बताते कि उसको उसका गुणगान करते हैं, उनका सौंदर्य क्या है, उनको भगवान ने, मतलब लोग पागल हो जाते हैं। अगर कोई साधारण बच्चे को हम लोग मान देते तो हम लोग सोचे उसमें बड़ी बात क्या है, तो स्वाभाविक है, उसमें सौंदर्य भी नहीं। वो बच्चा भी सोचे मेरे को क्यों पनिश कर रहे हो। पर यहाँ पे सत्यव्रत मुनि एवरी एंगल, एवरी इंच, एवरी बॉडी, एवरी सिम्टम, एवरी पता नहीं हर डिस्क्रिप्शन, भगवान के आंखों के अश्रु का डिस्क्रिप्शन दे रहे, भगवान के जो गालों में जो भगवान यशोदा की जो चुम्बन के बारे में वो बताते हैं, उनके पेट में जो 3 वो जो लाइंस है उसके में ये क्यों बताते हैं? बिकॉज ही हैज गॉट लव फॉर कृष्णा। जो व्यक्ति के प्रति उतना आसक्ति होता है भगवान के प्रति, वो व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है। When you love the person, उसके पास then you try to, मतलब उसके पास सब हजारों बाल अच्छा ही गुण दिखता है ना आपका। तो भगवान जो सर्वोत्तम पुरुष, सर्वोत्तम, उनके पास कोई बता दी कलमश ही नहीं है, इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। जब वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर व्यक्ति में जो शुद्ध भक्त देखता है, उसको एक छोटा सा गुण को भी ही मैग्निफाइज लाइक एनीथिंग। इससे जब हम वो आचार्य लोग के पद में फॉलो करते हैं, तभी हमें पता चलता है इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका क्या बताते कि फलस्वरूप। व्हाट इज अ फलस्वरूप? बोलते ना अरे करते तो क्या है, मेरे को क्या फायदा है वो बताओ। टेल मी व्हाट। आज के टाइम दिस इज द मॉडर्न जनरेशन, मॉडर्न सिनारियो। आई एम पुटिंग व्हाट इज गोइंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी। मुझे कुछ फायदा है या सिर्फ टाइम पास? यू स्पीक प्रैक्टिकल सर। इसलिए हर भागवतम के अंश में या हर कीर्तन के अंश में बोलते उसका एक फल स्वरूप देते हैं। अगर आपने ये किया तो एटलीस्ट आपका पाप निवारण होगा, अगर आपने ये किया तो एटलीस्ट आपको वैकुंठ धाम मिलेगा। अगर आपने, क्योंकि आचार्य लोग को भी पता था और शास्त्र में पता, यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन लोग को बहुत लोग रहते हैं। आई गिव व्हाट आई गेट। यहाँ पे अनलॉयड डिवोशन दैट इज ऑल सेकेंडरी। फर्स्ट टेल मी व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। गिव एंड टेक रिलेशन, ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज मतलब व्हाट एम आई गोइंग टू। दैट्स व्हाई इसमें बताया अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार, ओनली वंस, हाँ हर बार भी नहीं, एक बार वंस इट टेक्स अ लैम्प, उतना एफर्ट लेके सिर्फ लैम्प दीप उठा के सिर्फ एक बार भगवान विष्णु का अर्चना कर दिया, एक ही बार, देन ऑल हिज सिंस, सुमेरु जितना वर्ग के पाप है इमीडिएटली नलिफाइज। इमेजिन। अभी इसके ऊपर हमें कितना विश्वास है वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु ये क्या है, हम लोग घस घस के 16 माला कर रहे। इट इज बिकॉज वी डू नॉट हैव फेथ। तो मैं आज का जो प्रवचन है, ज़्यादा जैसे श्रीनिवासाचार्य को बता दे, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। ज़्यादा आज का हम कार्तिक का जो भगवान दामोदर है उनके जो अवसर मिला है, ये थोड़ा ये महीना कितना 4 महीने, आई थिंक बाय नवंबर 9 कार्तिक एंड्स, खत्म। पता नहीं अभी वापस हमें कार्तिक मिलेगा कि नहीं, नो गारंटी नहीं है ना, बट नेचुरल कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज का दिन ये अवसर मिला है, लेट अस यूज इट।
इसलिए आज मैं जरा मेरा प्रवचन को थोड़ा कम करके, और हमने जैसे अभी हाल ही में चालू की है, जैसे हम अगर समय मिला तो हम एक राउंड हरिनाम का जाप भी करेंगे. दैट इज़ व्हाट द न्यू प्रोसेस एंड दैट इज़ द हाईएस्ट प्लेजर. सो टुडे इज़ नॉट देयर, नो प्रॉब्लम. आज हम लोग दामोदर महीना इसके करेंगे, दामोदर दामोदर अष्टका. तो नेक्स्ट टाइम से वॉट एवर व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी हम लोग आज जाप कर लेंगे. तो आज ये जैसे मैं ये कथा आगे बढ़ाते बढ़ते मैं जैसे जब मुझे अवसर मिला, 2 मंगलवार में नहीं आ पाया, पर जैसे अवसर में था तभी मैं बता रहा था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, कथा चालू कर दे कि व्हाट इज़ द यूज़, ये हाथों का क्या यूज़ क्या है अगर ये हरि के चरण में स्पर्श नहीं किए, ये चरणों का क्या यूज़ है अगर ये भगवान के धाम के जाने के लिए योग्य नहीं है, अगर ये मस्तक का क्या उपयोग है जब तक भगवान के हरि के चरण में हम दंडवत ना देंगे, क्या फ़ायदा है. तो ऐसे करते करते ऑफकोर्स बहुत लंबा है, पर हम लोग सारांश में ले रहे 14 अध्याय में आ जाते हैं. अभी सुखदेव गोस्वामी इज जस्ट प्रिपेयरिंग, उनका प्रिपेयर कर रहे मूड. अभी तो शुरुआत है, बट अभी भागवतम शुरू होएगा. तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज अभी स्टार्ट होने से पहले सुखदेव गोस्वामी को पहले अपना प्रार्थना सुनाते हैं. उससे पहले आज का ट्रांसलेशन में सूत गोस्वामी वहाँ का जो मूड क्या है वो बता रहे कि महाराज परीक्षित द सन ऑफ उत्तरा आफ्टर हियरिंग द स्पीचेस ऑफ सुखदेव गोस्वामी which were all about the truth of the self applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ये चैप्टर में इसका वर्स 2 में बहुत है. यहाँ पे प्रॉपर बीच में मैं आपको मैं पढ़ा इतना कंसंट्रेशन में, यहाँ पे अगर आप सुने होंगे उसमें एक अच्छा वर्ड शब्द बताते हैं, टू बिकम अ प्योर डिवोटी. ये डेफिनेशन है. यहाँ तो सब लोग जो आए हैं एक ही इच्छा से आए ना, प्रभु मुझे शुद्ध भक्त बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ प्योर डिवोटी, मैं शुद्ध भक्त बनना है. अगर हमने सिर्फ संकल्प ही किए, इच्छा तो उतना नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू बी डिवोटी, चलो उसका नकल भी किए, प्रभु आई वॉन्ट टू बी अ प्योर डिवोटी, मुझे शुद्ध भक्त बनना है, वो शुरुआत है. सब लोग बोल रहे हैं, दामोदर सखा प्रभु बोल रहे हैं, संजय प्रभु बोल रहे हैं, एवरीवन इज क्राइंग कृष्णा प्लीज आई वांट टू बी अ प्योर डिवोटी. तो वो देख के एटलीस्ट हम जैसे न्यूफाइट भी बोले, चलो बाकी भक्त लोग बोल रहे हैं लेट मी ऑल्सो ट्राई, प्रभु माई लॉर्ड आई वांट टू बी अ प्योर डिवोटी, दिस इज व्हाट गौड़ीय वैष्णव इज. अगर हम लोग ने नकल भी किए तो ये हम लोग ने संकल्प लिया. तो यहाँ पे सब लोग जो आए हैं उनका एक ही इच्छा है, आई वॉन्ट टू बी अ प्योर डिवोटी, मेरे को शुद्ध भक्त बनना है. शुद्ध भक्त मतलब नो मटेरियल अटैचमेंट्स, उसका मतलब शुद्ध, नो कंटेमिनेशन. एक बोलते ना R2O वाटर मीन्स प्योर वाटर, नो डाइल्यूशन. शुद्ध घी, अहिंसा घी मीन्स नो एडल्ट्रेशन. नो एडल्ट्रेशन मीन्स कुछ मिलावट नहीं है. उसी तरह शुद्ध भक्त मतलब नो मिलावट नो मिलावट, नो मटेरियल डिजायर. भक्त भी है उसमें थोड़ा मिलावट भी है, दैट इज नॉट प्योर डिवोटी. शुद्ध भक्त मीन्स अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमः. दिस इज ए डेफिनेशन. अन्याभिलाषित शून्यम, कोई इच्छा बिना, नो मटेरियल डिजायर, ये अगर इच्छा देन दैट इज अ प्योर. इसलिए यहाँ पे ये वर्स में प्रॉपर गिव्स अ डेफिनेशन. इसलिए सब आजकल के टाइम में बोलते टेल मी द डेफिनेशन. आप डोंट बीट अराउंड द बुश, आप पूरे मेरे को दुनिया घुमाते मत रहो. एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट फॉर्मूला बता दो ना, शॉर्टकट फॉर्मूला. इतना लंबा प्रवचन और हमारे पास उतना समय नहीं है, आप इतना शॉर्टकट बता दो. इसलिए प्रभुपाद को पता था डेफिनेशन. जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े, बड़े बड़े आंसर को ज़्यादा अरे यार किसके पास समय है यार, ये चलो टीचर भी देखता है ओके बहुत मेहनत किया होगा.
3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ, चलो जो मन में आया। पर डेफिनेशन मतलब उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट। मतलब व्हाट इज अ प्योर डिवोटी, हाउ टू बिकम अ प्योर डिवोटी, कैसा एक शुद्ध भक्त बने, इसका एक डेफिनेशन दे दो, तभी आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं, आपको सिंपल फॉर्मूला बताते, सिंपल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो व्यक्ति सीरियसली लेंगे, ही विल हैव टू बिकम अ प्योर, ही हैज टू बिकम अ प्योर, शुद्ध भक्त बनना ही बनना। ओनली 2 चीज जरूरत है, ओनली 2 थिंग्स, सिर्फ 2 ही चीज बस हो गया एक शुद्ध भक्त के लिए होने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए। वन इज, एक है एक भक्तों के घर पे जन्म लेना, टू टेक अ बर्थ इन अ फैमिली ऑफ डिवोटीज, और दूसरा है टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। पहला भी उतना महत्व नहीं है, दूसरा बहुत महत्व है। ठीक है, सब लोग ने भक्तों के घर में जन्म नहीं लिया है, पर एक गुरु का आश्रय लेना, ये भगवान का कृपा होना चाहिए। अगर जन्म भी भक्तों के घर में नहीं हुआ, पर एक गुरु के आश्रय मिल गया, देन फिर तो शुद्ध भक्त बनना ही है। भगवान के सिर्फ समय छोड़ रहा है, क्योंकि देखिए एक वो बहुत भाग्यवान लोग रहते हैं जो एक वैसे बताते ना, एक भक्तों के घर में जन्म लेना, वो शुद्ध, वो मतलब आजकल के हम लोग देखते हैं, जैसे इवन अरे बोल व्हाट इज श्रीरंगा, योर नेम श्रीरंगा, यहाँ पे देखिए श्रीरंगा प्रभु, बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ डिवोटीज। एक्चुअली बहुत बताते कि दुर्भाग्य, हम लोग सोचते कि यार वो तो आपको पता नहीं प्रभु घर पे कितना पर हम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी देखते हैं। प्रभुपाद क्लियरली बताते, कृष्ण भक्ति के घर पे जन्म लेना, दे आर आइदर डेमिगॉड्स और योग भ्रष्टस, जिसका पहले के जन्म में योग भ्रष्ट होके वापस उनको जन्म लेना पड़ा, और आइदर वो बाकी देव देवगण हैं जो वापस अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, आप मानो या ना मानो, ये शास्त्र का एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स इसमें कभी कभी पतन होने का भी चांस है, कभी कभी मैं तो योग भ्रष्ट हूँ, नो, इट इज अ चांस, सेकेंड चांस, उसको पूरा चांस दिया जाता है। नाउ इज अ चांस, अभी चांस है भक्त बनने के लिए। नाउ ऑल उसको फेवरेबल सिचुएशन दिया जाता है, उसको पूरा अवसर मिल जाता है। एकांत भक्ति करके अपना ये चांस मिस मत करो। इसलिए शास्त्र वैसे लोगों का उदाहरण देता है, और इसलिए परीक्षित महाराज के उदाहरण में प्रभुपाद ने ये बताया, ओनली 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वन शुड बी बोर्न इन अ फैमिली ऑफ डिवोटीज, एक भक्तों के घर में जन्म लेना चाहिए, एंड सेकंड इज टू गेट द मर्सी ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अगर सिर्फ वो देखिए परीक्षित महाराज को पूरा चांस है, मैं तो भक्तों के घर में तो जन्म लिया, क्या जरूरत है, अरे नाम तो मेरे दाएं हाथ का, नो, to get the mercy of the spiritual master। वही परीक्षित महाराज भगवान के उदाहरण के थ्रू, इवन स्वयं भगवान भी गुरु के बिना, गुरु न गुलाम इदा, गुरु के गुलाम बिना यू कैनॉट प्रोग्रेस। एक शुद्ध भक्त के आशीर्वाद के बिना आप भगवान के भक्तों के घर में भी जन्म लिए हो, बट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। एक गुरु की आश्रय बिना इट इज कंप्लीटली, ये उतना सुलभ नहीं है, इतना सुलभ नहीं है। एक्चुअली हम एक आचार्य लोग एक उदाहरण देते हैं, हम लोग सोचते प्रभु जी उसमें क्या है, गुरु तो किसी को भी मैं गुरु मान लूं, गुरु तो उतना बड़ा नहीं, गुरु अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड मतलब प्योर डिवोटी, उसको मिलना उतना इजी नहीं है, उतना सुलभ नहीं है। इसका उदाहरण क्या बताता है, ये मन बोलता है कि उसमें क्या है, इतने तो सारे लोग हैं, नो, इट इज नॉट इजी। उसका उदाहरण क्या देते हैं, बता दे। आप कभी देखोगे समुंदर में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, ये जो कछुआ रहता है ना, कछुआ, टॉर्टोइस, आपने देखा होगा, टॉर्टोइस इज वो धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, पर एकदम डीप रहता है कभी कभी।
पर बीच बीच में कभी वो ऊपर आता है समुद्र में, किसके लिए? थोड़ा बता दें कि श्वास लेने के लिए, और वापस चले जाता है। अभी इतना बड़ा समुद्र में बताते कि एक लकड़े का, बताते ना, एक लॉग ऑफ वुड, एक किधर एक लकड़ा, एक बताते कि उधर मतलब सीलिंग, उसको क्या बोलते हैं, ठहरा होगा किधर, एक लकड़े का टुकड़ा, उसमें एक बड़ा होल है, एक बड़ा छेद है बीच में, और एक कहाँ पे भी कछुआ है, किधर भी है। पर वो कछुआ जब आते वक्त व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट उसका गला वो लकड़े के लॉक के अंदर ही आना चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या चांसेस है? जीरो चांस है। किधर कछुआ किधर और वो लकड़ा किधर भी, और बीच में आते लकड़े का किधर, पर कमिंग डायरेक्टली होल के अंदर आना, इट इज जीरो चांसेस। उसी तरह ए ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजा। ए ब्रह्मांड भ्रमिते, ये ब्रह्मांड, यही रूप है, रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु, यही ब्रह्मांड भ्रमिते। ये 14 लोक में कितने लोग मर रहे हैं, कितने स्पीशीज है, 84 लाख 1000 स्पीशीज एक्वाटिक्स, इतने कितने झाड़ है, कितने अंटार्कटिक है, उतने इतने सारे योनि में यही ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कौन है वो भाग्यवान है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। इट इज नॉट इजी। ये कछुए के समान है, वो है वेरी रेयर। यही ब्रह्मांड एक गुरु का आश्रय, इसलिए प्रभुपाद बताते दीज आर द ओनली 2 things टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एक गुरु का जो आश्रय मिला, इसलिए परसों में ऐसे ही पढ़ रहा था, हम लोग ये जो श्लोक है हम कितने बार हनुमान चालीसा श्रीनिवास आचार्य को उसके बारे में अभी चर्चा भी हो रहा है, सुंदरा कांड चल रहा है, तो तभी ये हम कितने बार कभी टिप्पणी हमने टिप ऑफ अ टंग में भी है, बाय आर्ट। बट फर्स्ट बिगिनिंग तुलसीदास क्या बोलते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। देन व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? निज मन मुकुर सुधारी, निज मन मुकुर सुधारी, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी। ओनली बाय द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ माय गुरु, निज मन मुकुर, मेरा जो है ये मन है, ये जो थर्ड क्लास मन है, सबसे बड़ा मन थर्ड क्लास, उसका जो मिरर को साफ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज। एक गुरु का जो रज है, उनका जो इंस्ट्रक्शन मिला, तभी मेरा कोई चांस है ये भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के लिए, अदरवाइज देयर इज नो चांस। ये दिस इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम प्योर डिवोटी। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। दैट शुड बी अ बर्निंग डिजायर। बताते कि रोंगटे खड़े होना चाहिए, वी शुड बी बर्निंग डे इन एंड डे आउट, हाउ विल आई बिकम द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ प्योर डिवोटी। जब उसका वैल्यू होगा तभी हम उसको सुलभ लेंगे। अगर हम इसे उसका महत्व पता नहीं है, हम उसको तोड़ेंगे, इट्स ओके, ओ उतना ये यथाम आम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे अगर आप ये तात्पर्य को सुनेंगे, द फेथ ऑफ परीक्षित महाराज वाज स्ट्रेंथन्ड बाय द कन्विक्शन ऑफ सुखदेव गोस्वामी। उनके पास विश्वास था, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा इज द सुप्रीम। इट वाज स्ट्रेंथन्ड मतलब उसको और ताकत करने के लिए गुरु के आश्रय बहुत जरूरत है। कभी भी ये बता देना, ये माया के नगरी में हमारा जो ये विश्वास है ना, विश्वास ये जो फेथ है, इट इज ड्विंडलिंग। हवा के तेज में कैसे वो बत्ती है ना, इधर उधर
उसके लिए ना उसको एकदम तीव्रतापूर्वक उसको शक्ति देने के लिए गुरु शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो कन्विक्शन है कमिंग इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी उतना दुर्लभ है। अगर वो व्यक्ति को अगर ये मिला देन हिज लाइफ इज परफेक्ट। तभी ये जो नेक्स्ट वर्स में, मैं आपको ज़्यादा ही नहीं बोला, नेक्स्ट वर्स में बताते कि ऑल वंस मटेरियल अटैचमेंट्स इज कंप्लीटली रिमूव्ड। आप ट्राई कीजिए, भौतिक आसक्ति को निकालने के लिए ट्राई कीजिए, वेरी डिफिकल्ट। कितने सब आसक्ति रहता है, ये आसक्ति वो आसक्ति, ये दुर्लभ ये वो ये, इसको निकालने के लिए उतना ईजी है? इट इज नॉट ईजी। बट जो व्यक्ति को भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित आता है वही व्यक्ति इसको निकाल सकता है। इसलिए प्रभुपाद बताते थे ट्राई टू डेवलप हायर टेस्ट। ये जब हायर टेस्ट मिलता है तो तभी लोअर टेस्ट निकल जाता है। हमें इसके साथ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। नीचे के जो टेम्पटेशंस हैं, ये जो आसक्ति है, ये बताते कि ये जो भौतिक जो हमारे इच्छा है, इसके साथ हमें ज़्यादा झुंझट करने की जरूरत है। जब हमें भगवान के प्रति आकर्षित आता है तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाता है। पर भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए वी हैव टू शो आवर सिंसियरिटी। आपको दिखाना पड़ता है कि भगवान आई वॉन्ट इट, किसी हालत में मुझे चाहिए। यू हैव टू प्रूव योर सिंसियरिटी। आपको दिखाना पड़ेगा कृष्णा आई वॉन्ट टू बिकम अ प्योर डिवोटी, मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब आपके सामने इंद्रदीप आई डोंट वॉन्ट इट, आप प्रयास किए। हम प्रयास करते हैं कि इंद्रदीप्ति को नहीं लेने के लिए बिकॉज इट डिस्प्लीजेस कृष्णा। संसितिम हरितोषणम, वी हैव टू शो आवर सिंसियरिटी, तभी ये शुद्ध भक्ति मिलता है। इतना सुलभ से कोई मिलता नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये वज्र है, वज्र, उसका मोल चुकाना पड़ता है। यू हैव टू पे द प्राइस। व्हाट इज द प्राइस? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? नो। चैंटिंग 16 डॉट्स? नो। 16 माला और 4 नियम? नहीं। योर सिंसियरिटी। आर यू सिंसियर? आप सचमुच सीरियस हो? क्या हम सचमुच सीरियस है भक्ति के मार्ग में कृष्ण को प्राप्त करना, या सिर्फ टाइम पास के लिए सब लोग कर रहे इसलिए करना चाहिए? नो, आई वांट टू बी सीरियस। मेरे को सीरियसली बनना है। ये दिस इज द प्राइस। यहाँ परीक्षित महाराज को बता सकते थे आराम से, ही शोड इज, अच्छा हो गया भगवान, अच्छा हो गया, मुझे शाप मिला, श्रृंगी का शाप मिला, बहुत अच्छा हो गया। I want to show my sincerity. Now tell me. तभी भगवान ने प्रयास किया। तुरंत सुखदेव गोस्वामी सामने आके खड़े नहीं हुए। He showed his sincerity. आप लोग साधु महापुरुष लोग मेरे को बताइए, what is the purpose of my life? हमें बताना पड़ता है, हमारा इच्छा भगवान को बताना, ये सिंसियरिटी है। इसलिए प्रभुपाद बताते कि उसको ये हमेशा मैं बताते रहता हूँ। प्रभुपाद जब एक बार यहाँ से मॉर्निंग वॉक में, जब सुबह के वॉक में जा रहे थे और जैसे वो गाड़ी में बैठे थे, एक डिसाइपल आके उनसे, प्रभुपाद व्हाट इज दैट विच रिक्वायर्स टू बिकम अ प्योर डिवोटी? एक शुद्ध भक्ति के लिए क्या होना चाहिए? प्रभुपाद पीछे, डिजायर, इच्छा। हम लोग सचमुच इच्छा है क्या? आई रियली वॉन्ट टू गेन कृष्णा इन दिस लाइफ। मुझे चाहिए भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। आई रियली बस हो गया, जन्म जन्मांतर से यही चलता है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका ही सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे दुश्मन है, यही चल रहा है। मैं आपको भूल के मैं यही सोच रहा हूँ, मेरा ही ये बैंक बैलेंस बन रहा है, ये आप सेकेंडरी है, बस हो गया ये। Now I am very serious about it. इसलिए ये भागवत दर्शन धर्म, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे this भागवत धर्म is for the serious students. ये भागवत धर्म ये हैंकी फैंकी के लिए नहीं है, चलो सात्विक मनो, नो। इसलिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बोल के मैं समाप्त करता हूँ, इट्स टू हैवी। हाल ही में
भगवान की असीम कृपा की वजह से हम जैसे तुच्छ व्यक्ति को एक अवसर मिला था। मैं कोलकाता गया था, जिसको इसका महत्व पता होगा। कोलकाता, अभी आप लोग मुझे अभी तो क्या हुआ, बड़ी कोलकाता हो। जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हैं उनको पता है श्रीला प्रभुपाद, हमारे सबको पता है इस्कॉन मीन्स प्रभुपाद, इस्कॉन मीन्स प्रभुपाद, बुक्स इज रिटन बाय प्रभुपाद। अगर कोई नया व्यक्ति यार तुम प्रभुपाद प्रभुपाद बोलते भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये है कौन? और इनका शुद्ध भक्त बनने का कारण था, वन शुड गेट टू थिंग्स, वन शुड बी born in a family of devotees and one should get the mercy of a pure spiritual master. यही अभय बाबू, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी हमारे जैसे ही थे, नॉर्मल हाउस होल्डर वर्किंग, बट born in a वैष्णव फैमिली। उनको पता था चैतन्य महाप्रभु फैमिली, गौर मोहन देव उनको वो संस्कार दिया था बचपन से, भगवान रथ यात्रा करो, वर्शिप द डीटीज, पूरा संस्कार। सभी साधु लोग को जाके पूछते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद? नॉट बिकम ए बिग बिजनेस मैग्नेट्स, नो, आशीर्वाद दे दो। क्या? राधा रानी का भक्त बने, श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। ही वॉज बेगिंग, भीख मांग रहे थे साधु लोग से, आ जाओ। और जाते मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो। अभय चरणारविंद दास, इसका नाम अभय चरण दे है, अभय चरण दे, इसको अभय चरण दे, इसको आशीर्वाद दे दो श्रीमती रानी। यही कोलकाता में परसों में जब गया था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा जगह है, उल्टा डंगा रोड उल्टा डंगा रोड। ये साल क्या है? विच इज दिस ईयर? ये साल क्या है? How much? What is the year? When did Srila Prabhupada meet Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? Remember this general knowledge question. No need of when was the Panipat war began. That's good. School. When did Srila Prabhupada meet Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, his guru? 100 years back. 100 साल पहले। बोलते ना आजकल पिक्चर आता है, 100 साल पहले क्या हुआ था? 1922, आज 2022 है, 100 years have passed, 100 साल हो गया। वो दिन था, वही दिन था। स्कॉटिश चर्च आज भी है वो। स्कॉटिश चर्च से 2 नवयुवक बाहर निकलते हैं, एक का नाम था अभय चरण और दूसरे का नाम था नरेंद्रनाथ मुलिक। दोनों अपना पुस्तक लेके बाहर जा रहे थे, तो तभी नरेन अभय के जैसे बोलते ना, अभय मैं तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति को बताता हूँ। कौन भाई? तू आज मेरे को इतना पॉलिश, बेस्ट पर्सन कौन? हु इज इट? एक साधु। बाप माफ कर दे, साधु छोड़, मेरे पास तू पूछ, साधु का डेफिनेशन मैं बताऊंगा। ये अभय का वाक्य है, प्लीज फॉरगिव मी। मैं 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ साधु लोग से, मैं सब जानता हूँ कौन है साधु। वो साधु लोग मैंने देखा है, मेरे पिताजी ने बेहिसाब साधु लोग को घर पे बुलाते थे, बेहिसाब। जो रास्ते में जो सैफरन डाला, आजा प्रसाद ले लो, कुछ तो और राधा रानी की कृपा दे दो। बस हो गए साधु लोग का, भाई मेरे को नहीं चाहिए। नरेंद्र बोलता है नहीं नहीं अभय नहीं, ये साधु अलग है, ये अलग है, ये साधु कोई अलग ही है, ये बाकी लोग नहीं है। तो ये बोले नरेंद्र नहीं मैं जानता हूँ। नहीं अभय तू जान, तभी वो वही स्ट्रीट में मैं देख रहा था, वही स्कॉटिश चर्च। अभी ये कभी हुआ था मेरे को पता नहीं है, लीलामृत में सत्स्वरूप महाराज बता देंगे कौन सा दिन है वो पता नहीं है, कभी हुआ था। उसका ईयर है 1922, कौन सा दिन वो आज भी हो सकता है,
कल भी हुआ होगा या परसों भी, वन ऑफ द डेज, पर ये लीला हुआ है। तो तभी ये दोनों नवक, जैसे आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ श्रीरंगा, कभी कि श्रीरंगा और इस जो दोस्त लोग हंसी मजाक में एक दूसरे, यार कम ऑन यार तू जा यार, ये तो लोगों को पता है झगड़ा भी कर रहे हैं पर उन लोग दोस्त हैं। उन लोग, ये कौन है धोती पहन के दोनों एक दूसरे को एक खींच रहा है और दूसरे यार नहीं मेरे को नहीं देखना है साधु, और दोनों हंस भी रहे। पर नरेन अभय, क्योंकि अभय चरण के संग में अभय वॉज कंसिडर द लीडर। अभय चरण को हमेशा उनकी ग्रुप में, जैसे बोलते ना, आर यू अ लीडर अमॉन्ग योर फ्रेंड सर्कल, यस वेरी गुड, ये लीडर, एक लीडर रहेगा तो सबको पूछता है वो क्या बोलता है उसके बारे में, श्रीरंग क्या बोलता है इसके बारे में उससे पूछना, बाकी ग्रुप वाले उसका पूछना। अभय वॉज कंसिडर द लीडर। बाकी नरेंद्रनाथ मूलिक के जो भक्त दोस्त लोग मिले थे, ये साधु से मिले थे, पर वो चाहते थे अभय का क्या ओपिनियन है, व्हाट इज ओपिनियन ऑफ अभय। तो दे वांट, इसलिए नरेन खींच रहा था, नहीं एक बार प्लीज अबे प्लीज मेरा बात मान ले भाई, मेरे बात इधर ही है, 2 ब्लॉक बिहाइंड है, मैं एक बार, मैं 5 मिनट से ज़्यादा तेरा समय नहीं लूँगा, प्लीज ट्राई टू। बोला बस ठीक है, तो बोल रहा है ठीक है, वो बोल रहा है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे को पूरा डेफिनेशन पता है। वही स्टेप 100 साल के बाद में जब जा रहा था, वही उल्टा डंगा रोड, भक्ति विनोद आसना एस्टैब्लिश्ड इन 1918 बाय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद, द डिसाइपल ऑफ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। ये है वो साधु 1918 में संन्यास लेके फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ गौड़िया मठ उल्टा डंगा रोड में भक्ति विनोद आसना उनके पिताजी के नाम में उन्होंने स्टार्ट किया था। और वही आश्रम में नरेंद्रनाथ मूलिक खींच के अभय को लेके आ रहा था। और लेके आने के बाद वहाँ पे एक श्री गंधर्वी का गिरिधारी का दर्शन लेके इन्होंने पूछा, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी प्रभुपाद, बोले छत के ऊपर है, छत पे। ये समय था संध्या काल 4 बजे के समय, 4 o'clock मिड इवनिंग थोड़ा लेट इवनिंग में। और तभी ये दोनों व्यक्ति वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद वही जगह पे, और जैसे वो जाके टेरेस के ऊपर देखते, एक स्टॉल डिवोटी एकदम लंबे से उनका ये था हाइट, स्ट्रेट बैकबोन, स्ट्रेट वेरी ग्रेव। आज भी उनका आप अगर देखे होगे भक्ति सिद्धांत, ऑलवेज स्ट्रेट स्टर्न इन हिज लुक्स। और दूर से जब ये दोनों नरेन और अभय जाके सामने खड़े होते और दंडवत देते, क्योंकि इनका वैष्णव सदाचार था, वैष्णव सदाचार होने की वजह से वो दंडवत देते हैं दोनों। देखिए दंडवत दे के उठने से पहले, नॉट इवन गॉट अप, सिर्फ दंडवत दे के उठने से पहले अ स्टर्न वॉइस ये मुख से आता है, यू आर एजुकेटेड यंग बॉयज, वाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। 1922 में आप लोग पढ़े लिखे नौजवान व्यक्ति हो, इनको देख के दोनों को, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पाश्चात्य देश में क्यों प्रचार नहीं करते हो। तभी अभय, यही अभय चरण, उनका वेशभूष क्या था, खादी। 92 मतलब स्वराज, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव इट। दिस वॉज महाराष्ट्र का स्लोगन था, स्वराज माझ्या, व्हॉट इज इट मराठी में क्या बोलते, माझा जन्मसिद्ध आहे आणि मी त्याला घेऊनच होणार। बर्निंग सभी जगह में, पूरा इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में ये बर्निंग, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव इट। और जो गर्व से लोग ये पहनते थे, गांधी का कपड़ा, खादी, मैं स्वराज लेके रहूंगा।
और यहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा है, यू आर एजुकेटेड यंग पीपल, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। आप लोग आज एजुकेटेड लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु का पाश्चात्य देश में जाके क्यों प्रचार नहीं करते हो? तभी सोच लीजिए, हम भी वहाँ पोजीशन में रहेंगे। सोच लीजिए, अभी आपने आपको पोजीशन में डाल दो, हम अगर वहाँ पोजीशन में, हम गांधी कपड़ा पहने हैं और तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे बोलते हैं, तो तभी आपका क्या उत्तर क्या रहेगा? स्वराज। स्वराज, स्वामी महाराज स्वराज। आप यही अभय चरण ने तुरंत बोल दिया, कौन सुनेगा आपका चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य? जब तक भारत को स्वराज नहीं मिलता है, कौन सुनेगा आपका महाप्रभु का आंदोलन के बारे में? Who is going to listen to your this thing? तभी आपको पता है ये उत्तर क्या मिलता है। इसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, डेयर डेविल। डेयर डेविल चाहिए, उतना गट्स चाहिए बोलने के लिए। वो गट्स किसके पास? जब वन वाज टेकन द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, वही बोल सकता है। वो बोलते हैं, यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु's message will not wait for the political change in the country. This is an urgent necessary. ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कोई पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए चेंज नहीं हो, रुक नहीं सकता है। आज ब्रिटिश राज्य कर रहा है, कल दूसरा कोई राज्य करेगा, कल तीसरा कोई राज्य करेगा। ये सिद्धांत आत्मा के लिए है। आप बात कर रहे हो शरीर के संबंध से बात कर रहे हो। मैं भारतीय हूं, मैं गांधीयन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये शरीर है। यू आर द स्पिरिट सोल। ये जो ज्ञान है मैं आत्मा के लिए बोल रहा हूं, ये शरीर के लिए नहीं है। आप अभी बात, यू आर टॉकिंग वेरी इंफीरियर टॉक्स। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये सभी लोगों के लिए है, विश्व भारत के लिए, विश्व सिद्धांत है ये। और उसके बाद वो बताते, और तभी हवाई वो शॉक्ड, वो शॉक्ड। पूरे भारत में लोग, सभी लोग यही बोल रहे कि स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना। पूरे इंडिया में ये एक ही व्यक्ति है जिसको पता है कि रियल स्वतंत्र क्या है। व्हाट इज रियल इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये सनातन धर्म है, ये ब्रिटिश धर्म नहीं है, ये अमेरिकन धर्म नहीं है, ये इंडियन धर्म नहीं है। दिस इज सनातन धर्म। आत्मा का एक ही स्वभाव है, टू लव कृष्ण। शरीर के संबंध से बात मत करो। जो व्यक्ति शरीर से जुड़ जाता है वो इधर ही रहेगा। यू प्रोपगेट दिस मैसेज टू देम। सीखिए, छोटा सा शब्द, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। To become a pure devotee, one requires only two things. One should be born in a family of a devotee. And second is, आज के तात्पर्य में, to get the mercy of a pure devotee, spiritual master. बात करते करते ऑलमोस्ट बताते कि 4 बजे से 6-7 बज गया था। और तभी इन लोग दंडवत दे के जब नीचे आ जाता है, प्रसाद लेते हैं। जैसे हम हमेशा आश्रम में लेते, प्रभु थोड़ा प्रसाद ले, प्रसाद दोनों नवयुवक प्रसाद ले लेते। प्रसाद खाने के बाद हाथ धो देते हैं। हाथ धोने के बाद चप्पल पहन के वही उल्टा ढंग के दरवाजे से बाहर जब आता है तो नरेन अभय से पूछता है, सो अभय क्या बोलते हो? That time अभय says, ये शब्द उनका, चैतन्य महाप्रभु's movement is in the right hands. चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना था, बट ऐसा साधु को मैंने कभी नहीं देखा था। I have accepted him as my spiritual master. देखिए, आज हमें ये पुस्तक है, ये भागवतम है, बिकॉज ये छोटा सा इंसिडेंट की वजह से।
अगर अभय को नरेन उस दिन नहीं लेता था, आज वृंदावन सोसाइटी प्रोग्राम हाँ नहीं होता था। आप मानो या ना मानो, नीदर मुझे ये अवसर मिलता था या चेयर में बैठ के बड़े बड़े प्रवचन देना। किसके बलबूते में मैं आज बोल रहा हूँ, किसके बलबूते में मैं बता रहा हूँ ये शास्त्र मेरा वाक्य है, किसके बलबूते में मैं ये वाक्य बता रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द भक्ति वेदांत स्वामी पर्पट्स, बिकॉज उनको गुरु का आश्रय मिलता। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु का चरण का तभी मेरा उनका जो सोच था, दैट वॉज द डे प्रभुपाद सेज 1922, there was never a moment I forgot my spiritual master. Rest was a history. Rest was a history. Entire Krishna conscious बढ़ने के लिए यही कारण था। इसलिए मैं ये शब्दों में मैं समाप्त करता हूँ। मैं आज सिर्फ यही बोला, what is the definition to become a pure devotee? Definition भी either you should be born, अगर एक भक्तों के घर में जन्म लिया बड़ी बात है, बट सबसे महत्वपूर्ण है एक शुद्ध भक्त का गुरु का पता थी कि ब्लेसिंग्स उनके आश्रय मिल गया, देन कृष्ण भक्ति कृपा मिलना ही। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजहा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? आप लोग ओपन, इज ओपन, जैसे एनीवन। नहीं, इट इज नथिंग यू फील। मतलब प्रभु जी बता रहे कि आपका एक्सपीरियंस क्या था। एक्चुअली जब आपको पता चलता है ये संप्रदाय का महत्व क्या है, तो तभी आप अपने आप को तुच्छ समझेंगे। मैं इसकी संप्रदाय से जुड़ा हूँ। हुआ द प्रोमिनेंट आचार्यस, श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मैं जब उनका दर्शन ले रहा था, तो तभी दोनों भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका योगदान मुझे याद आ गया। आज हमें शास्त्र इजीली अवेलेबल है। भागवतम बोले तो 1 मिनट में कॉल करो, 5,000 रुपये दे दो, आपको भागवतम मिल जाता है। पर इसको बनाने के लिए, इसको खींचने के लिए कितने योगदान दिए हैं इन्होंने, कितना प्रयास किया हुआ है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने में जब खड़ा था, तभी मुझे एक वर्स याद आ गया, रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धंत त्वंतहारिणे। ये रूप गोस्वामी यही रूपे रूप रघुनाथ गोस्वामी के जो शास्त्र का जो उन लोग चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव के बाद चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन को लोग बता रहे कि एकदम चीपली बना रहे थे, उसका कोई वैल्यू नहीं था। कोई भी के टॉम डी कैरी, तू भी ले आ रही, तू भी कृष्ण ले, ए राधे राधे, ए श्याम श्याम, अनादर पूर्वक भगवान श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी का नाम को अनादर पूर्वक कोई भी कुछ भी मंत्र जाप कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन का एक नौटंकी बना के रखा है। दैट टाइम भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया था, सेंड मी अ रे ऑफ विष्णु, और तभी इन्होंने आके रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धंत त्वंतहारिणे, ये अपसिद्धंत जो लोग उसको चीप कर रहे, डोंट डू दैट। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कोई नौटंकी नहीं है। ये सिद्धांत इट शुड बी ग्लोरिफाइड अमॉन्ग द इंटेलेक्चुअल्स। आज रास पूर्णिमा कोई भी नाच रहे, ए तू भी नाच, दैट इज नॉट वाई। चैतन्य प्रभुपाद क्यों बोल रहे थे वी डोंट चैंट राधे राधे,
श्रीमती राधा रानी का नाम अनादरपूर्वक नहीं ले सकते, हम तो योग्य भी नहीं है। यही सुखदेव गोस्वामी एंटायर भागवतम में श्रीमती राधा रानी का नाम उच्चार नहीं किए, और हम इतना सुलभ से बोले राधे। उस समय ऐसे आचार्यों लोग का जरूरत था। जब मैं उल्टा डंगा उधर खड़ा था तभी मुझे ये इनका क्या जरूरत था। भक्ति विनोद ठाकुर इनको बुलाए थे, प्लीज सेंड मी अ रे ऑफ विष्णु, क्योंकि इन भगवान को जो आंदोलन को उनको खुद अपना भक्ति करके चले जाते थे। दे वर कंसर्न फॉर यू एंड मी। हम लोग के लिए इन लोगों को कैसा पता चलेगा, इनको कैसे मूल्य पता चलेगा। इसलिए आचार्य लोग आते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरकार का फर्स्ट, यू ऑल एजुकेटेड यंग पीपल, आप लोग इंग्लिश, आप लोग एजुकेटेड पीपल, उसका बराबर से महाप्रभु का आंदोलन का बराबर से प्रचार करो, ये उनका उद्देश्य था। तभी हमें गुरु शिष्य, प्रभु जी ने पूछा इसलिए मुझे बताना पड़ा, वो गुरु शिष्य परंपरा का व्हाट इज अ पावर। वैसे प्रमुख आचार्य लोग हैं, कोई साधारण नहीं है। जब उनका मूल्य पता चलता है तभी हमें उसका वैल्यू पता चलेगा। ऑफकोर्स हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर सकते हैं, बट दिस इज मेरा थोड़ा सा तुच्छ विचार मुझे आप लोग के आशीर्वाद से आया। मुझे अनुभव कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ रियलाइजेशन अभय चरण के जैसे मेरा आज चेंज नहीं हुआ है। वो वन डे इट विल चेंज आप लोग के भक्तों के आशीर्वाद से, बट ये मुझे अनुभव हुआ। हरे कृष्ण। तो हम सुरावर वो लैम्प्स है, इट्स देयर, इट्स नॉट दैट सो किलिंग, इट्स देयर, या नो। दामोदर अष्टकम, ये दामोदर अष्टकम बता रहे हमें अवसर ही मिलता है वंस इन अ ईयर ये मिलने के लिए, गाने के लिए। तो उसको आप सीरियसली भगवान को, जब दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने जो गाया था, इसका हम तीव्र पूर्वक इसको दोहराएंगे। दामोदर सखा प्रभु कैन प्लीज़ प्रभु, नो प्रॉब्लम, लाइक नो प्रॉब्लम, आई प्रे करता, आई बी ऐसे। तो वील सिंग, हम लोग ये दामोदर अष्टकम गाएंगे। बहुत कम हमें ये अवसर मिला है, तो सभी लोग को हम बोलते हैं मे बी ये लाइट्स बंद करके, मे बी वन लाइट और समथिंग जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द लॉर्ड, या फैन बंद करके, ताकि हमारा जो केंद्रकरण है, दुनिया में कुछ भी ऊपर नीचे होते रहे, बट लेट अस फोकस, हमारा मन ये फोकस होने दो सिर्फ ये राधा दामोदर के ऊपर। हरे कृष्ण। ये माइक इज ऑफ, माइक इज ऑफ।